Dear students, in this session we will discuss about signal conditioning using filter circuits, and we will focus specifically active filters which have been made using operational amplifiers. So let's start. Let's take an example where we have one signal, let's say an ECG signal, and when we acquire that signal it is full of noise, as you can see in this diagram. So we want a very filtered one, very smooth signal out of this, and for this purpose we need some kind of a filter which can remove this high frequency vibrations or noise. So to remove this high frequency noise we need such kind of a filter which only allow low pass frequencies. So it means we need an RC type low pass filter which will allow only low frequency to pass but higher frequencies to get through towards the ground using capacitor. So RC circuit is a universal low pass filter that we are usually use in the circuits like in this circuit where we want to remove the high frequency noise. Okay. Similarly, we can have second order RC filter where the first stage is RC and then the second RC circuit cascaded with this. So the behavior becomes different because in this case we have first order system that is only one R and C, and in this case we have two R's and two C's. But being a low pass filter, इसकी एक सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है आरसी सर्किट्स की वो ये है कि जब इनको हम यूज़ करते हैं द सिग्नल गेट अटेनुएटेड. अटेनुएशन मीन्स द सिग्नल विल स्टार्ट डिकेइंग इट्स गेन लाइक दिस. जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं इसका गेन ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है, जबकि आइडियली क्या होना चाहिए कि जिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमने किसी फिल्टर को डिज़ाइन किया है उस फ्रीक्वेंसी से पहले तक उसका जो गेन है शुड बी कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी द गेन शुड डिक्रीज. ओके, बट practically it is not possible with RC kind of passive filters, so we need a bit more advanced versions of this or better method to have better filters. Let's discuss those filters. Okay, before going into much detail we must know what is the formula for relationship between output voltage and input voltage, and I think we have already done similar formula when we were discussing about frequency response of operational amplifiers. So from this formula or this diagram you can easily visualize that when the frequency is very less, okay, suppose this value is very less and so small that we can neglect with respect to 1. So what it will become? It becomes 0 and 1 upon 1 will become 1. So we can say at very low frequencies the output value will be equal to input value and the gain will be 1. Okay, if gain will be 1 in terms of decibel, this gain will be equal to 0. So that is what written here. That is for low frequencies the gain is 0, and as we increases the frequency that there is a decay in the gain. So it means in passive filter gain is the major issue, that is we cannot have gain more than 1. यानी जो इसका maximum gain हम लोग ले सकते हैं making denominator negligible, वो gain सिर्फ 1 है, इससे ज़्यादा gain नहीं बना सकते हम लोग. तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज वी कैन इंटरफेस एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर अलोंग विद दिस आरसी लो पास फिल्टर. तो इस केस में हमने क्या किया है, एक यूनिटी गेन नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया जिसको हम वोल्टेज फॉलोअर भी बोलते हैं, वी फॉलोअर, बिकॉज इट विल अलाउ वट एवर द वोल्टेज एट दिस टर्मिनल इज सेम वोल्टेज ये आउटपुट पर हमें दे देगा. तो इसका फ़ायदा फिर क्या हुआ, जो हमें इनपुट यहाँ मिल रही है सेम आउटपुट अगर आगे आ रही है तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इट विल
डू नॉट अटेनुएट द सिग्नल, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इस सर्किट को, आरसी सर्किट को लोडिंग नहीं करेगा। और इसकी क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम है, तो इसके बाद हम लोग जो सर्किट लगाएंगे या जो भी इसके ऊपर आगे लोड लगेगा, ये उसके ऊपर लोड नहीं डालेगा। सो दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन अभी भी इशू ये है कि गेन इसका 1 है, तो उसके लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अनदर वर्जन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज वी कैन यूज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद, जिसके अंदर हम लोग यहाँ एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, इसका जो गेन है हम लोग उस गेन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग इन टू दैट, आई वॉन्ट टू मैंशन हियर वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज कि इस बफर का जो हमने इसको यूज़ किया है, बफर को, बफर मीन्स वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, यानी जो भी सिग्नल हमें यहाँ मिलेगा सेम एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज है मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी इनपुट इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी इंटरफेसिंग कैपेबिलिटी जो है इस फिल्टर की वो अब इंक्रीज हो गई है। यू कैन इंटरफेस दिस लो पास फिल्टर टू एनी अदर सर्किट बिकॉज नाउ इट विल नॉट लोड द नेक्स्ट सर्किट, और इसका लोडिंग इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर जो अब हमने पहले इसके साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को फिट कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। लेकिन डिसएडवांटेज वही जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इसका जो गेन है वो 1 है। सो हाउ टू इंक्रीज दैट गेन, वी कैन इंक्रीज दिस गेन बाय connecting an amplifier where we can connect resistance in the feedback as well as on the input side. Like in this case we have non-inverting amplifier where on the negative side we have one RF or R2 which is connected in the feedback path and one R1 or other resistance is connected towards the ground. और हमने सिग्नल को फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. So whatever the signal comes here, now it will get multiplied by the gain, and the gain of this circuit will be obviously whatever the gain of this non-inverting amplifier. तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, that is the gain of this non-inverting amplifier is 1 plus ratio of feedback resistance divided by जो ग्राउंड वाली रेजिस्टेंस, और इन दिस केस R2 by R1 प्लस 1 इज द गेन. सो अगर हम R2 को 20 किलो ओम यूज करेंगे लेट्स से, एंड दिस इज R2 and let's say R1 is 1 kilo ohm, so it means we have a gain of, let's say DC gain or closed loop gain, I should write down 1 plus 20 upon 1 which is equal to 21. So it means we can multiply the signal by 21 times the input signal. So that depends upon your requirement of output and bandwidth definitely, because if you increase the gain your bandwidth will decrease. But now we have an advantage that with the help of operational amplifier the same RC low pass filter now become more versatile. Why versatile? Because its input impedance has been increased, output impedance is very less, and we have a now variable gain. Why variable gain? Because we have the choice of selecting the value of R2. If we keep R1 as let's say 1 kilo ohm, so we can choose any value of R2 as per our requirement of the DC gain of this particular circuit. We also call this gain as the pass band gain. What is pass band gain? We'll plot one curve with frequency for that gain, and to do this we must know what is the mathematical relationship between gain and the frequency. So it is, again we have already studied the similar formula in frequency response of operational amplifier. Obviously that response was an open loop configuration, but in this case we can modify it a bit, that this relationship of voltage gain will be the ratio of V out by Vn
we know this relationship is this much. So if you calculate the magnitude of this ratio, it would be like this one. So here AF is the passband gain of the filter, that is we already know we have used a non-inverting configuration. So therefore AF will be equal to 1 plus R2 upon R1. And what is F? F is the frequency of the input signal and FC is the cutoff frequency. And the value of cutoff frequency is fixed because it depends upon the value of only R and C, and this is the formula for FC, that is cutoff frequency equal to 1 upon 2 pi R into C. So we know the values of R and C, that is resistor and capacitor, so we can easily calculate what is cutoff frequency. Now we were interested in the plot or the behavior of response, that is if we plot gain versus frequency, how it will look like. So let's explore that. This relationship can be plotted like this, that is we know for all the frequencies which are lesser than FC, this denominator value will be very close to 1 because this factor will be less than 1 as FC is more than F, and if we take square of it, it will become even lesser. So on a roughly basis I could say that when F is lesser than FC, then denominator is almost 1. So if denominator is 1, the gain, voltage gain is almost equal to AF, and that is why this value is constant till we are very near to cutoff frequency, and we call this as pass band gain. पास बैंड गेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाली जो रेंज है हमारी, ये उन फ्रीक्वेंसीज की रेंज है जिनको हमारा फिल्टर पास करेगा, क्योंकि ये लो पास फिल्टर है इसीलिए FC जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसीज को ये सर्किट पास करेगा और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को ये अटेनुएट कर देगा, यानी पास नहीं होने देगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अ लो पास फिल्टर. ओके, so let's see what happens when F become equal to FC. When F become equal to FC, this ratio will become 1, square of 1 will 1, and 1 plus 1 will become 2. So this ratio will become equal to AF divided by root of 2, and this is 0.707 times the AF. ठीक है जी, AF क्या है? जो हमारा पास बैंड गेन है, यानी जो हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्म ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वजह से मिल रहा है, 1/1 प्लस R2/R1. Okay, so this is the gain when we reaches at cutoff frequency, this point. So this point will gives us lesser gain, that is 0.707 times the maximum value. और अगर इसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें, ये वैल्यू इस वैल्यू से 3 डेसिबल कम होगी, नीचे होगी. ठीक है, सो दिस value, this voltage will be 3 decibel, so this gain will be 3 decibel lesser than the pass band gain, and this is cutoff frequency. So it means again we can say as we increase the frequency, the gain will keep on decreasing, and it will decrease with the slope of 20 decibels per decade. यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को 10 टाइम्स कर देंगे तो हमारा जो गेन है वो 20 डेसिबल डिक्रीज हो जाएगा. This is another example where we have given that corner frequency is 159. Now we know that FC is 159 and it is equal to 1/2 pi RC. Okay, one more interesting thing, if you have been asked to design a low pass filter, so you have to always remember that you must consider capacitor as either 1 microfarad, 10 microfarad और 0.1 microfarad, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ये वाले कैपेसिटर्स. ठीक है, रजिस्टर तो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं. सपोज मैंने आपको बोला कि डिज़ाइन अ फिल्टर, लो पास फिल्टर हुज
cutoff frequency is, let's say, 1 kilohertz. So what you will do, you will put the value in this formula. 1 kilohertz, that is 1 into 10 raised to power 3 equal to 1 upon 2 pi. अब C को हमने क्या इमेजिन करना है, हर बार एज्यूम करना है 1 microfarad. So let's say into 1 into 10 raised to power minus 6 into R. So now you can find out R. So R will be 1 upon 2 pi into 1 minus 6, and accordingly this will be again minus. So you can find out what is the value of this resistance for this particular cutoff frequency, क्योंकि हमने कैपेसिटर को ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट वन इज हाई पास फिल्टर. तो हाई पास फिल्टर का कर्व जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके बाद इंक्रीज करेगा एंड इट विल बिकम कांस्टेंट, और ये हमारा पास बैंड गेन हो जाएगा. तो हाई पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है दैट इज द गेन विल बी वेरी लेस फॉर द लो फ्रीक्वेंसीज, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर frequency which is known as cutoff frequency the gain will be almost constant. यानी यहाँ पर ये 3 डेसिबल कम होगा तो इसके बाद जाकर के ये परमानेंट कांस्टेंट हो जाएगा एट इट्स मैक्सिमम लेवल, एंड दिस इज कॉल्ड पास बैंड गेन. ठीक है, तो ऑल फ्रीक्वेंसीज विच आर हायर देन दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल गिव द फुल सिग्नल स्ट्रेंथ आफ्टर दैट पर्टिकुलर फिल्टर, और फिल्टर उन सभी फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर देगा, पास नहीं होने देगा जो इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो आगे पास नहीं होगा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ हाई पास फिल्टर. बट इन दिस केस वी हैव नाउ a new ratio f upon fc in the numerator. So this is the overall formula. You know all the notations. AF is pass band gain, definitely it is equal to the gain of op amp. F is the frequency of input signal, fc is the cutoff frequency. स्लोप है ये वाला, इस केस में अब ये स्लोप जो पॉजिटिव हो जाएगा. लो पास के केस में ये स्लोप डिक्रीज हो रहा था तो हम बोल रहे थे -20 dB पर डेकेड. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हाई पास फिल्टर है तो ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई है. इसका एक और टर्मिनोलॉजी है, एक तो हो गया 20 डेसिबल पर डेकेड, एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है कुछ बुक्स में या कई बार एग्जाम में, गेट के एग्जाम में आ जाता है 6 डेसिबल पर ऑक्टेव. तो उसका मतलब क्या है कि अब फ्रीक्वेंसी की हमने रेंज चेंज की है लेकिन उसका स्लोप वही है. पहले हम फ्रीक्वेंसीज 10 टाइम्स ले रहे थे यानी 1 किलोहर्ट्ज़ के बाद नेक्स्ट रीडिंग हम ले रहे थे 10 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर, और वहाँ तक जाते जाते इसका जो गेन है वो 20 डेसिबल इंक्रीज कर रहा था. लेकिन ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, यानी अगर 1 किलोहर्ट्ज़ पहला स्टेप है तो नेक्स्ट उससे डबल होगा एंड नेक्स्ट उससे डबल एंड सो ऑन. तो अगर हम डबल की फॉर्म में इसको काउंट करेंगे तो ये 6 dB गेन इंक्रीज करेगा इसका. और दूसरी चीज़ है इसका जो फेज शिफ्ट है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड fc, दैट इज 1/2 pi rc f. एंड यूजली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो +45 डिग्री होता है. So please remember these kind of typical values. The last one is band pass filter. Band pass filter is a combination of low pass filter and high pass filter. Interestingly अगर आप इसकी डायग्राम देखो तो हमने पहले हाई पास फिल्टर लगाया है, उसके बाद हमने ये लो पास फिल्टर की डायग्राम दिख रही है हमें, यानी 2 रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं. पहले एक हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स आ रहा है, पास बैंड कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद एक लो पास फिल्टर की कर्व दिखाई दे रही है हमें. ठीक है, लेकिन जब हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम हायर फ्रीक्वेंसी को FH लिखेंगे जो कि किसी एक लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है FL
दैट रिप्रेजेंट्स हाई पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एफ एल मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी, एफ एच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी। पास बैंड फिल्टर के अंदर हमेशा दो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होंगी। अगर आपको क्वेश्चन आए डिज़ाइन अ पास बैंड फिल्टर विच कैन अलाउ द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम लेट्स से 1 किलोहर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़, तो इसका मतलब क्या है, एफ लोअर जो है दैट इज़ 1 किलोहर्ट्ज़ एंड एफ हायर जो है दैट इज 20 किलोहर्ट्ज़। ओके, सो लेट्स, ये इसका सर्किट है। हमने पहले हाई पास फिल्टर लगाया, उसको एम्पलीफाई किया सिग्नल को, उससे क्या क्या अटेन्युएशन नहीं होगा, लोडिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर हमने लो पास फिल्टर लगाया, तो इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एफ एच बोलेंगे। इस सर्किट की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एफ एल से डिनोट करेंगे, और इसकी जो बैंडविड्थ है दैट विल बी एफ एच माइनस एफ एल, दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस पास बैंड फिल्टर। सो आइसोल जो इसका एम्पलीफायर है ये वाला, अलॉन्ग विद एम्पलीफिकेशन ये एक और काम कर रहे हैं यहाँ पर, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द आइसोलेशन बिटवीन टू स्टेजेस। यानी अगर कोई नॉइस है तो पावर के अंदर कोई नॉइस है तो उसको भी ये आइसोलेट कर रहा है, दोनों स्टेजेस को, हाई पास स्टेज और लो पास स्टेज को आपस में आइसोलेट करके रखता है। या दिस इज द प्लॉट आई वांट टू शेयर विद यू फॉर बैंड पास फिल्टर। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज पास बैंड, इसकी अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, दैट इज एफ एच माइनस एफ एल विल बी नोन एज बैंडविड्थ। तो बी डब्ल्यू जो है इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल, ये जो डिफरेंस है ये वाला सारा, ये दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस पास बैंड फिल्टर, और ये उसका गेन है, पास बैंड गेन। So as the shape describes, shape suggests, it's a combination of पहले हाई पास फिल्टर एंड देन वी हैव लो पास फिल्टर। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू फैक्टर। ठीक है, तो अगर हमारे पास वो क्यू फैक्टर कम है इट मीन्स बैंडविड्थ उसकी ज़्यादा है। तभी क्यों, आप अगर फॉर्मूला देखो क्यू फैक्टर का, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू central frequency divided by bandwidth, where bandwidth is difference of fh minus fl. What is center frequency? This one. Center frequency lies between fl and fh. ठीक है, तो fh और fl का दोनों का जो सेंटर होगा दैट इज fc, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। जब इसको हम बैंडविड्थ से डिवाइड कर देंगे ओनली देन वील गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। तो अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब जो फिल्टर का रिस्पॉन्स है वो वाइड बैंड है, वाइड बैंड पास बैंड फिल्टर है। तो वाइड बैंड अगर आपके पास फिल्टर है इट मीन्स बी डब्ल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स क्वालिटी फैक्टर उसका जो क्यू फैक्टर है दैट इज़ लेस। ठीक है, तो अगर आपको हाई क्वालिटी फैक्टर यानी कम बैंडविड्थ का फिल्टर डिज़ाइन करना है, के लिए एक मॉडिफिकेशन है सर्किट के अंदर। This is the circuit you have to remember for narrow band pass filter, और इसके अंदर हम कैस्केड नहीं करते, एक कॉम्बिनेशन को हम लोग फीडबैक में यूज़ करते हैं और एक को हम लोग इनपुट की तरफ यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज इन्वर्टिंग बैंड पास फिल्टर विद हाई क्वालिटी फैक्टर। ठीक है जी, ये दोनों इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, सेम फार्मूला। So that's all for this session. Thanks for watching this video.